And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Again, today I will discuss the second part related to the MCQ on procurement of goods. General Financial Rules 2017. We know that procurement of goods is the most important part. So today I will discuss question number 52 to 101. Because already in my first part, already I have discussed question number 1 to 51. Then it is the second part related to the procurement of goods. Today I will discuss question number 52 to 101. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that you can get notification for my upcoming videos. Then after that I will upload procurement of services. Okay, another MCQ I will upload. So this part would be very useful for you. You go through the video till the end. You can get very important informations, and also it would be useful for you at the time of facing interview or viva. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Now I am going to discuss question number 52 to question number 101. Question number 52. Question number 52, you say dash is to be provided by the ministry or department before procuring the goods from a single source. So it is very important one. You see the GFR rule 166. It is related to the single tender inquiry. So in case of single tender inquiry, if good is procured from a particular manufacturer, so in this case proprietary article certificate, it is very important one. Answer is bit A, proprietary article certificate, PSC. Clear? This certificate must be provided, this certificate is to be provided by the ministry or department before procuring the goods from a single source. Okay, one certificate is there. It is in the certificate is clearly mentioned the indented goods are manufactured by no other make or model is acceptable for the following reasons. Single source means actually the single manufacturer actually producing the product. Any other alternative model or any other alternative manufacturer is not available. Okay, and related to the public interest also, from the single source the particular commodity can be procured. So इसे एक certificate actually देना है. Certificate must be provided by the ministry or department. Okay, it is related to the single tender inquiry. You see the GFR rule 166. Okay, it is very important one. बहुत बार एक क्वेश्चन आया है. तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट में मेंशन करना है, ऑथेंटिक रीजन्स देना है कि क्यों एक सिंगल सोर्स से गुड को प्रोक्योर किया जाएगा. फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली द गुड इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम ए सिंगल एजेंसी, फ्रॉम ए सिंगल मैन्युफैक्चरर. ओके, सम रीजन्स, इट मस्ट ऑथेंटिक रीजन, सम जस्टिफाइड रीजन्स मस्ट बी गिवन इन द सर्टिफिकेट. इट इज़ द मेन रीजन. सपोज एनी ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरर इज नॉट अवेलेबल. क्लियर? कि the single manufacturer actually producing that type of product, that type of spare parts, कि that type of machinery, the single manufacturer actually producing it. Okay, and it is convenient for the basically department to procure the good from a single agency. So authentic reason देना है. ठीक है, आंसर इज बिट ए. चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन. रूल 166 सिंगल टेंडर इंक्वायरी. इट इज़ द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली ए पर्टिकुलर फार्म इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स. ओके, अभी मैं बताया एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्चुअली गुड को प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पर क्लियरली दिया है, देख लीजिए. और इन केस ऑफ इमरजेंसी द रिक्वायर्ड गुड्स, इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको भी याद रखना है. द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरली टू बी परचेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स. Okay, and next one you see for standardization of machinery,
और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपैटिबल टू द एग्जिस्टिंग सेट्स ऑफ इक्विपमेंट। सो ये दो तीन चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक सिंगल एक्चुअली मैन्युफैक्चरर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, सेकेंड वन इन इमरजेंसी एक्चुअली द पर्टिकुलर कमोडिटी शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सिंगल एजेंसी, ओके, एंड डिसीजन टेकन बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एंड देन जो भी स्पेयर पार्ट्स है, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी है, वो एक्चुअली चाहिए डिपार्टमेंट को, कि वो चाहिए एक्चुअली कंसर्न ऑफिस को। तो ये सब ऑथेंटिक रीजन देना है, जो तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी का आर्टिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है जब सिंगल सोर्स से गुड को प्रोक्योर किया जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 53, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसिडर्स इट नेसेसरी टू सीक कॉम्पिटिटिव ऑफर्स फ्रॉम अब्रोड फॉर एनी गुड्स, इट मे सेंड कॉपीज ऑफ द नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर टू डैश। सपोज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फाइनली डिसाइड किया कि गुड को प्रोक्योर किया जाएगा अब्रोड से। फाइनली द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक्चुअली डिसाइडेड दैट द गुड कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अब्रोड। हम जानते हैं कि जब बेसिकली नॉर्मल, आपको याद रखना है, यदि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन 200 करोड़ है, ओके, और वो हमारा कंट्री में अवेलेबल नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन 200 करोड़, मोर देन 200 करोड़ से, तब वो बिडिंग को बेसिकली अब्रोड से इनवाइट किया जाएगा। मगर जब ये डिसाइड हो गया कि हाँ, जो बिडिंग इनवाइट किया जाएगा अब्रोड से, तो वहाँ पर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स टू डैश, तो बहुत द इंडियन एम्बेसीज अब्रोड, द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, एंड बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या है, हाँ, जो बोथ ए एंड बी आंसर है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली इसको जो इंडियन एम्बेसीज है अब्रोड में, उनको इन्फॉर्म करना है, और जो फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, उनको अब्रोड करना है। सपोज हम यूएसए से अभी बिडिंग इनवाइट करेंगे, तो हमारा जो एम्बेसडर है यूएसए में, उनको इन्फॉर्म करेंगे, और जो अमेरिकन एम्बेसडर है, जो अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, उनको भी इन्फॉर्म करेंगे। तो बोथ ए एंड बी, तो आपको याद रखना है, वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसिडर्स इट नेसेसरी to seek competitive offers from abroad for any goods, it may send copies of the notice inviting tender to the Indian embassies abroad, the foreign embassies in India, okay, both A and B, ठीक है। वो जो कॉपीज़ जो बेसिकली जो टेंडर कॉपीज़ है, तो वो पहले भेजा जाएगा इंडियन एम्बेसीज़ को और फॉरेन एम्बेसीज़ को। अभी मैं एग्जांपल में बताया, सपोज अभी हम बिडिंग को इनवाइट करेंगे यूएसए से, जो हमारा एम्बेसी यूएसए में है, उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको वो बेसिकली इसके जो कॉपीज सेंड करेंगे, और जो अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, उनको भी वो कॉपीज को सेंड करेंगे, राइट। तो बोथ ए एंड बी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 54, टू बीड सिस्टम। बेसिकली जो टू बीड सिस्टम है, वो रूल 163 आप देख लीजिए, GFR 163 में टू बीड सिस्टम के ऊपर है। इन टू बीड सिस्टम साइमल्टेनियस रिसिप्ट ऑफ सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड्स। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, बोथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड्स ओपनड साइमल्टेनियसली, 4 ऑप्शंस गिवन, यू सी। द टेक्निकल बीड्स आर टू बी ओपनड at the first instance. At the second stage, financial bids of only these technically acceptable offers should be opened. Then fourth option given, financial bids of all bidders should be opened. Actually two bid system में क्या है, simultaneously दोनों bids आएगा, technical and financial bids separately, both technical and separate financial bids submitted by the bidders. But first one, technical bids को evaluate किया जाएगा। एक कमिटी है, एक टेक्निकल कमिटी, टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी, टेक्निकल, यहाँ पर आप याद रखिए, टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी। तो टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी पहले टेक्निकल बिड्स को एवेल्युएट किया जाएगा, जिनका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अच्छा है, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा, तो फिर उनका फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा। सभी का फाइनेंशियल बिड्स को ओपन नहीं किया जाएगा। फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को एवेल्युएट किया जाएगा। कौन एवेल्युएट करेगा? टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी। टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। टेक्निकल बिड्स एवेल्युएट करने के बाद जो बिडर्स का एक्चुअली जो टेक्निकल बिड्स ठीक है,
रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा, उनका प्राइस शेड्यूल को कंपेयर किया जाएगा, फिर अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 54 जो 4 स्टेटमेंट्स है, तो स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है। टेक्निकल बिड्स आर टू बी ओपन एट द फर्स्ट इंस्टेंस। सेकेंड स्टेज में फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकल एक्सेप्टेबल ऑफर शुड बी ओपन। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, लास्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अभी हमको आंसर मिल गया। तो देखेंगे यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बेसिकली आंसर बिट सी, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट वन। फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा, उसको एवेलुएट किया जाएगा कमिटी के द्वारा, और जिनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ठीक रहेगा और वो क्वालिफाई हो जाएंगे और उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को सेकंड स्टेज में ओपन किया जाएगा और एवेलुएट किया जाएगा, उनका प्राइस शेड्यूल को कंपेयर किया जाएगा और जिनका लोएस्ट प्राइस होगा तो उनको अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी 2 स्टेज बिडिंग, जो 2 स्टेज बिडिंग है आप देख लीजिए, रूल GFR रूल 100, यहाँ पर आप देख लीजिए GFR रूल 164 आप देख लीजिए, 163 था 2 बिड सिस्टम। 100 जो GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 164 है वो 2 स्टेज बिडिंग के ऊपर है। 2 स्टेज बिडिंग में क्या है, जो टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों को साइमल्टेनियसली एक्चुअली इनवाइट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट बिडर्स टेक्निकल बिड्स को सबमिट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टेक्निकल बिड सबमिट होगा, टेक्निकल बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा कमिटी के द्वारा, टेक्निकल एवेलुएशन कमिटी के द्वारा। जिनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ठीक रहेगा फिर सेकंड स्टेज में वो उनका फाइनेंशियल बिड को सबमिट करेंगे। तो बेसिकली 2 स्टेज बिडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 2 बिड सिस्टम था पहले 163 में, आपको याद रखना है, जो बेसिकली 2 बिड सिस्टम में क्या है, बेसिकली हाई वैल्यू प्लांट, मशीनरी एट्सेट्रा। यदि हाई वैल्यू प्लांट होता है कि मशीनरी होता है, कोई कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर होता है, वहाँ पर 2 बिड सिस्टम होता है। वहाँ पर दोनों बिड एक ही साथ सबमिट किया जाएगा सेपरेटली, बट टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा, एवेलुएशन कमिटी उसको टेक्निकली एवेलुएट करेगा, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनका ही फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाएगा। और 2 स्टेज बिडिंग अलग है। फर्स्ट स्टेज में ओनली टेक्निकल बिड्स को सबमिट किया जाएगा और उसको कमिटी एवेलुएट करेगा, राइट। फिर जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा फिर उनको फाइनेंशियल बिड्स को इनवाइट किया जाएगा। तो वही है, इन 2 स्टेज बिडिंग ऑब्टेन बिड इन 2 स्टेजेस विथ रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल बिड्स आफ्टर रिसिप्ट एंड एवेलुएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स। ये ट्रू है, आंसर इज BT। तो अभी आपका समझ में आ गया कि जो 2 स्टेज बिडिंग ये क्या डिफरेंट है 2 बिड सिस्टम से, कि 2 स्टेज बिडिंग में जो टेक्निकल बिड्स, जो फाइनेंशियल बिड्स साइमल्टेनियसली वो सबमिट नहीं होगा। जैसे 2 बिड सिस्टम में साइमल्टेनियसली सबमिट होगा सेपरेटली, मगर यहाँ पर साइमल्टेनियसली दोनों बिड्स सबमिट नहीं होगा। पहला स्टेज में ओनली टेक्निकल बिड्स को सबमिट किया जाएगा, उसको जो टेक्निकल एवेलुएशन कमिटी है उसको वो एवेलुएट करेगा, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर्स मिलेगा उनसे ही ओनली फाइनेंशियल बिड्स को इनवाइट किया जाएगा और उनका प्राइस शेड्यूल को कंपेयर किया जाएगा। तो ये 2 स्टेज हो जाता है। मगर 2 बिड सिस्टम में क्या है, साइमल्टेनियसली दोनों बिड्स एक्चुअली सबमिट होगा, मगर पहले टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा और जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा फिर उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा और एवेलुएट किया जाएगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर इज BT। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। द एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटेशन ऑफ टेंडर शुड बी गिवन इन। जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जब टेंडर्स इन्वाइट किया जाता है, व्हेन द टेंडर्स एक्चुअली इन्वाइटेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट, देन द एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी गिवन। ओके, सो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट क्या है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ये करेक्ट है। गवर्नमेंट GM पोर्टल में दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट, और खुद का जो वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें भी दिया जाएगा। तो ये आंसर BD है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो जब बिडिंग को इनवाइट किया जाएगा तब उसको एडवर्टाइज किया जाएगा। जब बिडिंग को इनवाइट किया जाएगा तो वहाँ तो जो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, और बेसिकली आपको याद रखना है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल
जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड जो ऑर्गेनाइजेशन खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाएगा और वहाँ पर बिडर्स क्या करेंगे, फ्रीली वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, फ्रीली विदाउट एनी कॉस्ट वो डाउनलोड करेंगे और फिर वो सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर है बिड डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक आप देख लीजिए बेसिकली ई पब्लिशिंग होता है। आप रूल देख लीजिए, GFR रूल आप देख लीजिए, GFR 159 ये रिलेटेड टू द ई पब्लिशिंग है। जो ई पब्लिशिंग में क्लियरली मेंशन है कि जो भी टेंडर्स जब इनवाइट किया जाएगा उसका जो डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बेसिकली इन व्हिच पोर्टल्स द डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, so that easily the bidders they can download the documents freely and then they fill up it and within stipulated period of time again they submit it. Okay, all of the above. मगर यहाँ पर जो याद रखना है, जो GFR 159 में क्लियरली मेंशन है, यदि ऐसा कुछ बिडिंग है, इट इज़ रिलेटेड टू द सपोज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, वो उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। ओके, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो एक्चुअली इस तरीका का बिडिंग को एक्चुअली वो पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। राइट, वो कॉन्फिडेंशियल है, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ओके, तो इसमें एक्चुअली उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा। तो आप GFR 159 में ई पब्लिशिंग के ऊपर है। राइट, आप देख लीजिए, जो GFR 159 है वो ई पब्लिशिंग के ऊपर है, पब्लिशिंग। राइट, आप उसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर इज बिट डी, क्वेश्चन नंबर 56। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। Due to convicted of an offence, a bidder or any of its successor shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding dash years commencing from the date of debarment। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रूल को देखिए, आप देख लीजिए GFR 151, इसमें क्लियरली मेंशन है debarment of bidders। Okay, GFR 151, in GFR 151 it is clearly mentioned that in which cases actually the bidders should be debarred. Okay, basically they would be basically debarred to submit their bids. Okay, तो यहाँ पर जो clearly mention किया गया है, और यहाँ पर कितना साल के लिए, actually वो 3 years के लिए। Okay, generally the bidders should be debarred for 3 years. Answer is bid C। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए बीडर शैल बी डेवेड इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ए करप्शन एक्ट 1988 के हिसाब से सपोज ऐसा कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस वो करते हैं तो वहाँ पर उनको डेवेयर कर दिया जाएगा। सेकेंड है कि वो ऐसा कुछ गुड्स सप्लाई करेंगे जिसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी लॉस होगा, कि डेफिनेटली देयर इज लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो वहाँ पर एक्चुअली इंडियन पेनल कोड में उनके अगेंस्ट में केस लगेगा। तो ये केस में एक्चुअली बिडर को डिवेयर किया जाएगा। तो आपको 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। बेसिकली इन व्हिच केसेस द बिडर शुड बी डिवेयर्ड फॉर बिडिंग। फर्स्ट वन, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इफ दे इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्ट इट इज गिवन, करप्शन एक्ट 1988 आपको याद रखना है। if they involve in any type of corrupt practice, then they would be debarred for 3 years. Okay, then next one, suppose any type of commodity they supply, due to this there is loss of property and there is loss of human life and it adversely affect the health of the people and it is against a public interest, so इस केस में भी उनको डिवेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है नॉट एक्सीडिंग माने इट मीन्स यहाँ पर 3 years के लिए, ओके, अप टू मैक्सिमम 3 years के लिए उनको डिवेयर किया जाएगा। राइट, आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 58, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ए बीडर शैल बी डिवेयर्ड इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, अभी मैं बताया था, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये करेक्ट है, और द इंडियन पेनल कोड IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और कॉजिंग ए थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी ट्विस्ट होकर आ सकता है, आपको याद रखना है कि ये दोनों कंडीशन है, इसी कंडीशन में बीडर को डिवेयर किया जाएगा। ठीक है, जो नॉट एक्सीडिंग 3 years, ओके, इट मीन्स मैक्सिमम 3 years के लिए उसको डिवेयर कर दिया जाएगा। ठीक है,
और वहाँ पर जब उसको डिवेयर किया जाएगा तब उसको ऐसे उसको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन देगा कि उसको सपोज एक नोटिस भेजा जाएगा क्यों आपको डिवेयर नहीं किया जाएगा, तब उसको मौका भी दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट ट्रिपल आई है, बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट वन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी ट्विस्ट होकर आ सकता है, थोड़ा आप उसको ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बीडर को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, डायरेक्टली उसको डिवेयर नहीं किया जाएगा, उसको एक नोटिस भेजा जाएगा, एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि क्योंकि ये सब एक्चुअली दैट टाइप ऑफ एक्चुअली थिंग्स एक्चुअली इम्पोज ऑन यू, सो you should be debarred for bidding. So in this case actually the opportunity should be given to the bidder for representation. Okay, फिर रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज करने के बाद उसको अप टू मैक्सिमम 3 years उसको डिवेयर कर दिया जाएगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 59, ए प्रोक्योरिंग एंटिटी में debar a bidder or any of its successors from participating in any procurement process undertaken by it for a period not exceeding dash if it determines that the bidder has breached the code of integrity। ये डिफरेंट है बेसिकली, पर्टिकुलरली आप देख लीजिए जो रिलेटेड टू द कोड ऑफ इंटीग्रिटी है, आप देख लीजिए GFR 175, जनरल फाइनेंशियल रूल 175 देख लीजिए, कोड ऑफ इंटीग्रिटी है वहाँ पर। तो बेसिकली इस केस में प्रोक्योरिंग जो एंटिटी है वो देखा कि बेसिकली द बीडर एक्चुअली ब्रीचिंग द कोड ऑफ इंटीग्रिटी। वो क्या क्या है, कुछ ब्राइब देकर इन्फ्लुएंस कर रहा है और कुछ ऐसे गिफ्ट फिफ्ट दे रहा है। ओके, वो जो ट्रांसपेरेंसी है, बेसिकली जो एफिशिएंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी का खिलाफ है। कभी कभी वो जानबूझकर किसी ऑफिशियल को कुछ इट मीन्स मॉनेटरी गेन दे रहा है बिडिंग लेने के लिए। ठीक है, और ऐसा कुछ बेसिकली रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स दे दिया है। ठीक है, कुछ ब्राइब दे दिया है, तो ये सब इन्फ्लुएंस करता है, तो वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। राइट, तो इस केस में बेसिकली प्रोक्योरिंग एंटिटी उसको 2 years के लिए ओके उसको डिवेयर किया करेगा। तो बेसिकली ये कोड ऑफ इंटीग्रिटी के ऊपर है। जो पहला क्वेश्चन था जो जनरली बेसिकली वो अलग था, बेसिकली ये जो है ये रिलेटेड टू द प्रोक्योरिंग एंटिटी, पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी। आपको याद रखना है द कोड ऑफ इंटीग्रिटी को बीडर ब्रीच करता है तब उसको 2 years के लिए डिवेयर किया जा सकता है। वो 2 years के लिए उसको मौका नहीं दिया जाएगा बिडिंग के लिए। राइट, तो आंसर इज बिट बी। और जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी है बेसिकली आप जो 175 है आप उसको देख लीजिए, बेसिकली GFR 175 उसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली कोई बीड रिगिंग हो गया कि कोई ऑफिशियल के साथ एनी कल्यूजन हो गया, किसी ऑफिशियल को ब्राइब दे दिया उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, और बिडिंग लेने के लिए ऐसा कुछ ऑफिशियल्स को परसुएड किया, तो इस केस में एक्चुअली सब कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया जाता है जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी का खिलाफ में है। तो इस केस में एक्चुअली जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है बेसिकली जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द प्रोक्योरिंग एंटिटी कैन डिवेयर द बिडर अप टू 2 years। राइट, तो चलो क्वेश्चन नंबर 60 को चलेंगे। A bidder shall not be debarred unless such bidder has been given a reasonable opportunity to represent against such debarment। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, मैं अभी बताया था आपको, थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिए कि सपोज ये डिटेक्ट हो गया कि बेसिकली बीडर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इट इज़ अगेंस्ट बेसिकली इट इज़ गिवन करप्शन एक्ट 1988 वो दिया है। इट मीन्स किस किस केस में एक्चुअली द बेसिकली द बीडर इन्वॉल्व होगा तो उसको डिवेयर किया जाएगा। और ऐसा कुछ गुड सप्लाई किया जो इट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक कि ड्यू टू दिस एक्चुअली देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड ड्यू टू दिस एक्चुअली द केस इज लॉस द केस एक्चुअली लॉज बेसिकली इन द पुलिस स्टेशन अगेंस्ट हिम। तो ये सब केस में क्या है उसको डिवेयर कर दिया जाता है मैक्सिमम 3 years के लिए। तो यहाँ पर क्या है उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, द अपॉर्चुनिटी एक्चुअली गिवन टू द बिडर कि उसको एक नोटिस भेजा जाएगा, द सो कॉज नोटिस एक्चुअली शुड बी गिवन टू द बिडर एंड ऑल्सो ये सो कॉज नोटिस में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको क्यों डिवेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो करप्शन एक्ट था 1988 उसमें जो भी पॉइंट्स है, जो करप्शन प्रैक्टिसेस का पॉइंट्स है
उसमें आप इन्वॉल्व हो, वो बेसिकली उसमें मेंशन है, करप्शन एक्ट 1988 में क्लियरली मेंशन है कि किस तरीके का एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपको डिवेयर किया जाएगा, और कि आप ऐसा गुड सप्लाई किया जो इट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, तो आपको डिवेयर क्यों नहीं किया जाएगा। तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, बिना रिप्रेजेंटेशन से उसको डायरेक्टली डिवेयर नहीं किया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा बिडर को, ठीक है, कि आपको इसी रीजन से डिवेयर किया जाएगा, तो आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर जो है करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 61, इन GFR डैश दर इज डिबारमेंट ऑफ बिडर्स फ्रॉम बिडिंग इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। अभी मैं बताया था जो GFR 151 है इसमें क्लियरली मेंशन है, ओके, डिबारमेंट ऑफ बिडर्स के ऊपर ये क्लियरली मेंशन है, जनरल फाइनेंशियल रूल 151, राइट। तो ये जो है आंसर बिट बी है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 को चलेंगे। ये रिलेटेड टू द एडवांस पेमेंट है। आप एडवांस पेमेंट के ऊपर देख लीजिए, GFR बेसिकली GFR 172, जनरल फाइनेंशियल रूल 172 देख लीजिए। एडवांस पेमेंट टू ए सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ जो एरिया है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स, ये दिया गया है। बेसिकली जो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक स्पेशल नेचर का होता है, जहाँ पर जब इक्विपमेंट सोफिस्टिकेटेड होता है, कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, वहाँ पर टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको याद रखना है। बेसिकली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट्स, ओके, वहाँ पर सप्लाई का बात आता है, तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वही टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस और जो फैब्रिकेशन ये सब है, मगर यहाँ पर जो एडवांस दिया जाता है, मगर जो यहाँ पर जो है आंसर बी डी है, ऑर्डिनरी गुड्स का सप्लाई करने के लिए एडवांस नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स, वहाँ पर क्वेश्चन क्लियरली पूछा है, क्वेश्चन इज आस्किंग एडवांस पेमेंट टू ए सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स। ऑर्डिनरी गुड्स के लिए एडवांस नहीं दिया जाएगा। ये आप देख लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है क्लियरली मेंशन है एडवांस पेमेंट रिलेटेड, इट इज़ रूल 172 में है। तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एडवांस दिया जाएगा, फैब्रिकेशन के लिए दिया जाएगा। अभी मैं टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बताया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स होता है कि सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होता है, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, इस केस में एडवांस पेमेंट दिया जाएगा, मगर ऑर्डिनरी गुड्स के लिए कोई एडवांस पेमेंट नहीं दिया जाएगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अगेन एडवांस पेमेंट टू ए प्राइवेट फार्म शुड नॉट एक्सीड डैश। प्राइवेट फार्म को ज़्यादातर बेसिकली यहाँ पर जो आंसर होगा बिट सी होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उसका मैक्सिमम 30% एडवांस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जो एडवांस दिया जाएगा बेसिकली जो प्राइवेट फार्म है वो सप्लाई करता है तो उसको एडवांस दिया जाएगा, मगर इट इज़ मैक्सिमम 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर बीट सी है, और ये आपको याद रखना है प्राइवेट फार्म के लिए। तो प्राइवेट फार्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना मैक्सिमम कितना एडवांस दिया जाएगा ना, 30%, ओके। जो गवर्नमेंट फार्म होता तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मैक्सिमम 40% एडवांस दिया जाता। तो प्राइवेट फार्म के लिए आपको याद रखना है मैक्सिमम 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी गिवन एज एडवांस, मगर जो गवर्नमेंट फार्म को जो एडवांस दिया जाएगा वो मैक्सिमम 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर जो है ये प्राइवेट फार्म रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर बिट सी है। क्वेश्चन नंबर 64, ये भी मैं बता चुका हूँ, एडवांस पेमेंट टू गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी सप्लाई करना चाहता है तो उसको एडवांस कितना दिया जाएगा ना, बेसिकली इट इज शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ओके मैक्सिमम 40% एडवांस दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको याद रखना है गवर्नमेंट एजेंसी। तो प्राइवेट एजेंसी को कितना 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैक्सिमम, और जो गवर्नमेंट एजेंसी को मैक्सिमम कितना एडवांस दिया जाएगा ना, 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, राइट। अब GFR 172 देख लीजिए, ये क्लियरली मेंशन है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 65, इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर, इन द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर डैश। यहाँ पर जो एडवांस के ऊपर है, यहाँ पर जो एडवांस दिया जाएगा जो जितना 6 मंथ्स के अंदर जितना पेमेंट किया जाएगा उतना ही उसको एडवांस आकार में दिया जाएगा। बेसिकली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में
तो सॉरी, बेसिकली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको याद रखना है जो एडवांस दिया जाएगा, तो जो 6 मंथ्स में जितना उसको पेमेंट करना है, जो वो मेंटेनेंस का काम कर रहा है, और 6 मंथ्स के अंदर उसको जितना पेमेंट किया जाएगा उतना ही एक्चुअली एडवांस उसको दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये रिलेटेड भी एडवांस रिलेटेड है। ओके, ये भी एडवांस रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बेसिकली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस दिया जाएगा, और बेसिकली जनरली जो 6 मंथ्स में जो काम होगा, जितना पेमेंट करना चाहिए उतना ही उसको एडवांस पेमेंट दिया जाएगा। राइट, आंसर इज बिट डी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। पार्ट पेमेंट टू ए सप्लायर में बी रिलीज्ड। पार्ट पेमेंट रिलेटेड में आप देख लीजिए 172, ये जो रूल है बेसिकली 172 पार्ट 2 में क्लियरली मेंशन है, पार्ट पेमेंट रिलेटेड मैटर में। तो पार्ट पेमेंट क्या है, जो बेसिकली आपको याद रखना है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि किस टाइम में एक्चुअली उसको पार्ट पेमेंट दिया जाएगा। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जब एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट में मेंशन हुआ था, एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन है कि कब उसको पार्ट पेमेंट दिया जाएगा। और एक सेकंड है कि आपको याद रखना है, पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर में बी रिलीज्ड आफ्टर इट डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट इज प्रीमाइसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब उसका प्रीमाइसेस से, जब सप्लायर का प्रीमाइसेस से गुड को डिस्पैच किया जाएगा तब उसका पार्ट पेमेंट रिलीज किया जाएगा। तो ये दो चीज़ याद रखना है, वही दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट वन जो पार्ट पेमेंट दिया जाता है, आपको तो रूल बताया GFR 172 पार्ट 2 में दिया गया है कि फर्स्ट वन जो डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहाँ पर मेंशन है कि कब पार्ट पेमेंट दिया जाएगा। और एक सेकंड है, जब सप्लायर का प्रीमाइसेस से गुड को डिस्पैच किया जाएगा तब उसका पार्ट पेमेंट रिलीज किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ सकता है, और ये रूल को भी याद कीजिए 172(2). ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है बोथ ए एंड बी है, दोनों को याद रखना है पार्ट पेमेंट रिलेटेड में। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 66, आंसर इज बिट सी। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। When it is decided with the approval of the competent authority to replace an existing old items with a new and better version items called, आप देख लीजिए GFR 176, इसमें एक बाय बैक ऑफर है, ये आंसर होगा। बाय बैक ऑफर में क्या है, जो ओल्ड आइटम्स है, ओके, ओल्ड आइटम, न्यू आइटम्स एक्चुअली रिप्लेस द ओल्ड आइटम्स। ओल्ड आइटम्स के जगह हम क्या करेंगे, न्यू आइटम्स ले जाएंगे। एक बाय बैक ऑफर होता है, GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 176 में क्लियरली मेंशन है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अप्रूव करेंगे, और उनका अप्रूव करने के बाद जो एग्जिस्टिंग ओल्ड आइटम्स है इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू आइटम्स। ओके, आंसर इज बीट है, बाय बैक ऑफर। आप देख लीजिए जनरल फाइनेंशियल रूल 176। तो क्वेश्चन नंबर 68। इन ऑल गवर्नमेंट परचेजेस शुड बी मेड इन ए ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड फेयर मैनर टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको GFR 173 आप देख लीजिए, जनरल फाइनेंशियल रूल 173 देख लीजिए, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन एंड फेयर मैनर टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस, ओके, ये सब रिलेटेड जो है रूल 173 में मेंशन है। आंसर इज बिट डी। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस होगा, हम डिस्कस आगे में करेंगे, मगर यहाँ पर आपको याद रखना है जो बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट, द ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी देयर एंड इफेक्टिव कंपटीशन मस्ट बी देयर एंड फेयरनेस मस्ट बी देयर। तो ये सब मेंशन है जो GFR 173 है, इसमें मेंशन है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 69 को चलेंगे। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया के ऊपर दिया है, बेसिकली क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रेस्पॉन्सिवनेस आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एवेल्युएटिंग द बीड्स। जो बीड एवेल्युएशन जब होता है, यहाँ पर आप कुछ ये जो है क्राइटेरिया आपको याद रखना है। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग
क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रेस्पॉन्सिवनेस आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर इवैल्यूएटिंग द बीड्स। जब बीड्स को इवैल्यूएट किया जाएगा क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा? फर्स्ट वन आप याद रखिए, टाइम ऑफ डिलीवरी है कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, द टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट है, कि प्राइस है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग, ये सब आ जाता है क्राइटेरिया में। आप इसको एवेलुएट करना चाहिए, जो कमिटी है वो इसको एवेलुएट करेगा, जब बीड को एवेलुएट करेगा इसी क्राइटेरिया से। फर्स्ट वन टाइम ऑफ डिलीवरी है कि जो डिलीवरी साइकिल होता है किस टाइम में एक्चुअली डिलीवरी होगा। परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी की एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस देना है, कि एफिशिएंसी रिलेटेड मैटर में, कि जिससे जो भी गुड सप्लाई होगा उसमें वो कुछ इसमें एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, कि जो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, जो पार्ट पेमेंट के ऊपर है, कि जो एडवांस रिलेटेड में है, कि प्राइस शेड्यूल, ये सबको एवेलुएट करना है, और कॉस्ट ऑफ जो मेंटेनेंस है, ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये सब चीज़। तो यहाँ पर जो देख लीजिए, ये टाइम ऑफ डिलीवरी, ये अभी हम डिस्कस किया क्राइटेरिया में क्या क्या होता है, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, ये भी है, द टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड ऑफ गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग, ये सब होता है, राइट। तो ये सब क्राइटेरिया करेक्ट है। तो ये जो आंसर होगा बीटा ई होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है, जब बीड्स को एवेलुएट किया जाएगा तो ये सब चीज़ को एक्चुअली देखना ज़रूरी है, कि टाइम ऑफ डिलीवरी है, कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, कि द टर्म ऑफ पेमेंट, कि प्राइस शेड्यूल, कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग, ये सब चीज़ को देखना चाहिए। तो यहाँ इसमें भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ सकता है, राइट। तो ये भी आप देख लीजिए, GFR 173 में मेंशन है, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरियाज फॉर एवेलुएटिंग बीड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 70, रिजेक्शन ऑफ ऑल बीड्स इज जस्टिफाइड व्हेन इफेक्टिव competition is lacking, all bids and proposals are not substantially responsive to the requirements of the procurement documents, the bids or proposal prices are substantially higher than the updated cost estimate or available budget, none of the technical proposals meets the minimum technical qualifying score। जो रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स इज जस्टिफाइड हुए नहीं, आंसर बिट ई है। ये सभी पॉइंट्स को आप देख लीजिए, रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स, ये भी GFR 173 में मेंशन है। ये पूरा बिड्स को रिजेक्ट कब किया जाएगा? फर्स्ट वन, इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, जब कंपटीशन, इफेक्टिव कंपटीशन लैक होगा तब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन जो है, जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है कि नहीं। यदि रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है तब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी करेक्ट है। और प्राइस को देखा जाएगा बजट के हिसाब से, यदि जो प्राइस शेड्यूल दिया है बिडर्स वो सब हाई है, इट इज़ बियॉन्ड द एक्चुअली इट इज़ बियॉन्ड द रीजनेबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो इस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो टेक्निकल बिड्स है, किसी को मिनिमम स्कोर नहीं मिल रहा है, क्योंकि टेक्निकल बिड्स को तो एवेलुएट किया जाएगा और एक मिनिमम स्कोर मिलना चाहिए, किसी को मिनिमम स्कोर नहीं मिल रहा है। तो ये जो चारों केस है, ये चारों केस में सभी बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चारों केस को आपको याद रखना है, इसमें सभी बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ सकता है। ये अगेन जो GFR 173 में क्लियरली मेंशन है, कब बेसिकली बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किस किस कंडीशन में, राइट। तो ये चारों जो 4 कंडीशन है, A, B, C एंड D, आपको इसको याद रख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 71, लैक ऑफ कंपटीशन इन GFR 173 shall not be determined solely on the basis of the number of bidders। ये करेक्ट है। एक्चुअली ये नहीं कि सपोज सिंगल बिडर, एक सिंगल बीड एक्चुअली जमा हुआ है तभी भी उसका बेसिकली बीड को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है यहाँ पर। प्रोक्योरमेंट वॉज सेटिस्फैक्टरली एडवर्टाइज्ड एंड सफिशिएंट टाइम वॉज गिवन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। जो जब प्रोक्योरमेंट, जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इनवाइट किया जाता है उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, पब्लिक CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, JM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और खुद ऑर्गेनाइजेशन का खुद का वेबसाइट में एडवर्टाइज किया जाता है। तो सफिशिएंटली एडवर्टाइज किया गया है, सफिशिएंट टाइम दिया गया है,
बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो इतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, और जो प्राइसेस है वो रीजनेबल है, ठीक है। इसके हिसाब से एक बिडर डालता है और उसका इसी के हिसाब से उसका बिडिंग जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है वो जस्टिफाइड है, उसको रिसीव किया जाएगा। तो जो लैक ऑफ कंपटीशन ये नहीं है कि बिडर के हिसाब से ये वो एक बिडर डाला है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो एक ही बिडर डाला है, ये नहीं है, वो लैक ऑफ कंपटीशन नहीं है। लैक ऑफ कंपटीशन कब आता है? सफिशिएंटली एडवर्टाइजमेंट किया गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया, ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं था, फिर भी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ उसके हिसाब से नहीं हुआ। ये प्राइसेस रीजनेबल प्राइस भी था, मगर जो अभी जो प्राइस शेड्यूल बिडर्स ने दिया है वो बहुत हाई है। तो इस केस में चाहे वो सिंगल बिडर इसको फॉलो करता है, तीनों चीज़ में बार बार बता रहा हूँ, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फॉलो करता है, उसका प्राइसेस रीजनेबल है, ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है, एक सिंगल बिडर डालता है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको हम लैक ऑफ कंपटीशन नहीं बोलेंगे, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ट्रू वन, ठीक है। तो लैक ऑफ कंपटीशन कब होगा? जब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो दिया गया है उसके हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, जो प्राइस शेड्यूल दिया गया वो बहुत हाई है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि प्रोक्योरमेंट जो है उसका जो एडवर्टाइजमेंट सफिशिएंटली हुआ, और जो टाइम दिया गया बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए वो भी सफिशिएंट टाइम दिया गया, तो उसमें कुछ कमी नहीं था, मगर फिर भी बिडिंग डॉक्यूमेंट सही तरीके से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया गया, तब उसको लैक ऑफ कंपटीशन बोलेंगे, राइट। तो आंसर इज बीट है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 72 को चलेंगे। इवन व्हेन ओनली वन बिड इज सबमिटेड, ये दिया है देखिए, इवन व्हेन ओनली वन बिड इज सबमिटेड द प्रोसेस में बी कंसिडर्ड वैलिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सिंगल बिडर एक्चुअली बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, फिर भी उसका बिड को एक्सेप्ट किया जाएगा यदि वो जो क्राइटेरिया है उसको ठीक से फॉलो करेगा। तो प्रोक्योरमेंट वाज सैटिस्फैक्टरीली एडवर्टाइज्ड एंड सफिशिएंट टाइम वाज गिवन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वी आर नॉट अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव वन, प्राइसेस रीजनेबल इन कंपैरिजन टू मार्केट वैल्यूज, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। इवन व्हेन इसी कंडीशन में एक बिड सबमिट हुआ है और ठीक तरीके से सबमिट हुआ है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ये लैक ऑफ कंपटीशन में नहीं आएगा। कब लैक ऑफ कंपटीशन आता है? जब मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको एक्चुअली मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बेसिकली नहीं है, बिडर्स ने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है मगर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है, जो प्राइस शेड्यूल दिया है वो बहुत हाई है। ये भी नहीं बोल सकता कि एडवर्टाइजमेंट सफिशिएंटली नहीं हुआ है, कि सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया, ठीक है। और ये जो है आंसर बी डी है। चलो क्वेश्चन नंबर 73, इन केस ए परचेज कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमिटी इन केस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स ₹25 लाख। सपोज एक परचेज कमिटी कंस्टिट्यूट किया गया और वहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट होगा वो एक्सीड्स ₹25 लाख होगा, तब इस केस में जो क्लियरली दिया गया, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर, इसको याद रखना है। यदि प्रोक्योरमेंट जो वैल्यू है मोर देन ₹25 लाख होगा, मोर देन ₹25 लाख होगा, तो इस केस में डायरेक्टली जो परचेजिंग कमिटी का मेंबर डायरेक्टली अदर मेंबर को रिपोर्ट नहीं करेगा। ओके, आंसर इज बीट सी, इसको भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74, bidders should not be permitted to alter or modify their bids after expiry of the deadline for receipt of bids, ये करेक्ट है। ओके तो जो bidders should not be permitted to alter or modify their bids after expiry of the deadline for receipt of bids, जो receipt of bids का डेडलाइन जा चुका है उसके बाद bidders एक्चुअली उसका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई अल्टर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेगोशिएशन विथ बिडर्स आफ्टर बीड ओपनिंग मस्ट बी सीवियरली डिस्करेज, ये भी करेक्ट है। अभी बीड ओपन हो गया उसके बाद एक्चुअली कोई बिडर के साथ नेगोशिएशन नहीं करना है, ये करेक्ट है। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर प्राइस नेगोशिएशन अगेंस्ट एन ad hoc प्रोक्योरमेंट इज नेसेसरी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेम में बी रेस्टोर्ड टू ओनली विद द लोएस्ट एवेलुएटेड रेस्पॉन्सिव बिडर, ये भी ठीक है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है करेक्ट है, आप देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट है करेक्ट है। पहला क्या है,
जो बिडिंग सबमिशन डेट था वो सबमिशन डेट जा चुका है, उसके बाद बिडिंग में कोई अल्टरनेशन नहीं होगा। बीड ओपनिंग हो गया, बीड ओपनिंग के बाद कोई भी बिडर के साथ नेगोशिएशन नहीं करना है। और नेक्स्ट कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, कोई बेसिकली ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है जो बहुत एक्सेप्शनल है, उस केस में प्राइस नेगोशिएशन किया जा सकता है, मगर आपको याद रखना है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट डी, राइट। तो इसको उसके ऊपर भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ सकता है, थोड़ा देख लीजिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 75, द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस टू बी मेड बाय द बिडर्स, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस, ये सही है। टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ द अबव। इसके ऊपर भाईबा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, सपोज डिलीवरी द सर्विस इन टाइम और नॉट, ये सब चीज़ को देखा जाता है। बेसिकली ये सब आ जाता है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन केस में टू बी मेट बाय द बिडर्स। मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं बताया ये सब, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, उसका पास्ट परफॉर्मेंस, ओके, इसका डिलीवरी सर्विस, ये सब मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी में आ जाता है। तो ये आंसर बिट डी है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये सब क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस को चेक किया जाता है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, जो चेक किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ये सब को चेक किया जाता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 76, bidding documents should include a clause that if a firm quotes dash, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered। यहाँ पर जो आंसर है नील चार्जेस, एक बेसिकली एक क्लॉज होता है जो क्लॉज में बेसिकली मेंशन हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए GFR 173 में देख लीजिए, जनरल फाइनेंस 173, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स शुड इंक्लूड ए क्लॉज दैट इफ ए फार्म कोड्स नील चार्जेस और कंसिडरेशन द बिड शैल बी ट्रीटेड एज अनरेस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स शुड इंक्लूड एक क्लॉज है, इफ ए फार्म, वहाँ पर एक क्लॉज होता है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, यदि इफ ए फार्म कोड्स नील चार्जेस, यही आंसर है नील चार्जेस, ये जो नील चार्जेस, राइट, द बिड शैल बी ट्रीटेड एज अनरेस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। आंसर इज बिट ए, क्वेश्चन नंबर 76, राइट। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, suitable provision should be kept in the bidding document to enable a bidder to question the bidding conditions, bidding process and rejection of its bid। So suitable provision, ये correct है, suitable provision should be kept in the bidding document to enable a bidder to question the bidding conditions, bidding process and rejection of it। वो क्वेश्चन कर सकता है बिडर कि बिडिंग कंडीशंस के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बिडिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, और बिड को रिजेक्ट कर दिया गया उसके ऊपर भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो जस्टिफाइड है, ये करेक्ट है। द रीजन्स फॉर रिजेक्टिंग ए टेंडर और नॉन इशूइंग ए टेंडर डॉक्यूमेंट टू ए प्रोस्पेक्टिव बिडर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड व्हेयर इंक्वायरीज आर मेड बाय द बिडर, ये भी करेक्ट है। यदि बिडर ये पूछ सकता है कि मेरा बिडिंग को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, उसका रीजन क्या है, तो वहाँ पर भी रीजन देना जरूरी है। जो प्रोक्योरिंग एंटिटी वो रीजन देगा कि इसी रीजन की वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कि आपका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, रीजन देना है, ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, सुइटेबल प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इफ एनी एमानेटिंग फ्रॉम द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, ये भी है। बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन है, ऐसा कुछ डिस्प्यूट्स आ जाता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, किस किस कंडीशंस में उसको सेटल किया जाएगा, वो भी मेंशन है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सुइटेबल प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इफ एनी एमानेटिंग फ्रॉम द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। यदि कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है उसको कैसे सेटल किया जाएगा उसके ऊपर भी पॉइंट्स है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। तो एक बिडर, यहाँ पर आप याद रखिए कि बेसिकली द बिडर हैज़ राइट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द बिडिंग प्रोसेस, फॉर व्हाट रीजन इट मीन्स द बिडिंग डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड, कि आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द बिडिंग क्राइटेरिया, ठीक है। और सेकेंड वही दिया था, इफ द सपोज
सपोज द पर्टिकुलर बीडर आस्किंग क्वेश्चन फॉर व्हाट रीजन माई इट मीन्स बिडिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड, तो प्रोक्योरिंग एंटिटी को आंसर भी देना है, ऑथेंटिक रीजन देना है, किसी रीजन के वजह से आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब करेक्ट है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स जो था यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी बढ़िया है। एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट होगा सपोज बिडिंग में, तो वहाँ पर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है कि इसी के ऊपर कोई टाइप एनी टाइप ऑफ सपोज डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। वही एमानेटिंग मीन्स ओरिजिनेटिंग, यदि कुछ ऐसा कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है उसको कैसे सेटल किया जाएगा वो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, ठीक है। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर यहाँ पर करेक्ट वन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 78, द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंडिकेट क्लियरली दैट द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी interpreted under Indian laws. The bidder should be given reasonable time to prepare and send their bids. The bidder should be opened in public and authorized representatives of the bidder should be permitted to attend the bid opening. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंडिकेट क्लियरली दैट द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रेटेड अंडर इंडियन लॉज। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन है जो इंडियन लॉज है उसके हिसाब से एक्चुअली इंटरप्रेट किया जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को। और द बीडर शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू प्रिपेयर एंड सेंड देयर बिड्स, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, ये भी करेक्ट है। और जब जो बीड्स को जब ओपन किया जाएगा वहाँ पर पब्लिक के सामने इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक द बीड्स शुड बी ओपन। और जो बीडर्स का कोई ऑथराइज यहाँ पर दिया है, देखिए द बीड्स शुड बी ओपन इन पब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बीडर्स का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो सपोज जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है वो भी प्रेजेंट रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिडर शुड बी परमिटेड टू अटेंड द बिड ओपनिंग। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली ओपन होगा वो पब्लिक के सामने होगा और कोई भी सप्लायर बिडर का रिप्रेजेंटेटिव वो प्रेजेंट होना चाहता है जब बिडिंग ओपनिंग होता है तो उसको भी अलाउ किया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और जो ऑप्शन दो ऑप्शन में बताया अभी आगे में कि रीजनेबल टाइम दिया जाएगा बिडर्स को, डेफिनेटली सफिशिएंट टाइम गिवन टू द बिडर्स टू सबमिट देयर बिड्स, ओके। और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली भी मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉज एक्चुअली द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी इंटरप्रेटेड। तो ये सब क्लियरली मेंशन है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर जो है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79, when a limited or open tender results in only one effective offer, it shall be treated as a single tender contract। ये करेक्ट है। जब ओनली सपोज सिंगल बीडर एक्चुअली सिंगल बीडर का डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि आप जान चुके हो कब बीड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जब मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो रीजनेबल प्राइस दिया गया है बेसिकली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में देखा गया कि जो बीडर्स जो प्राइस शेड्यूल दिया है बहुत हाई है, ठीक है। और ये नहीं कह सकता कि कोई बीडर की सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया बिडिंग को सबमिट करने के लिए। तो चाहे यदि एक ही बीडर का बिडिंग को एक्सेप्ट किया गया तो इसको बेसिकली सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आंसर है बिट सी है, और आंसर बिट सी है करेक्ट वन। When a limited or open tender results in only one effective offer, it shall be treated as a single tender contract, right? चलो क्वेश्चन नंबर 80, in dash public procurement procedure should ensure efficiency, economy, accountability। तीन चीज़ है, आप देख लीजिए GFR 174 में तीन चीज़ के ऊपर एम्फासाइज किया गया है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, ओके। तो बेसिकली एफिशिएंसी में टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब एफिशिएंसी में आ जाता है, ठीक है। टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस, डिलीवरी सर्विस, ये सब आ जाता है। इकोनॉमी में जो प्राइस है रीजनेबल है, प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कोई ब्राइब फ्राइब ऐसा कोई बिडर कोई ऑफिशियल को इन्फ्लुएंस करके एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। तो ये तीनों चीज़ जो है बेसिकली आपको याद रखना है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, वो GFR 174 में क्लियरली मेंशन है,
जब भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में बेसिकली व्हेन एनी प्रोक्योरिंग अथॉरिटी व प्रोक्योरिंग एंटिटी प्रोक्योर द कमोडिटी, देन it means procuring entity is bound to follow these three things: efficiency, economy and accountability. प्रॉपरली एवेलुएट किया जाएगा, ओके, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली एवेलुएट किया जाएगा, और बेसिकली लोएस्ट प्राइस जो जिस बिडर का लोएस्ट प्राइस होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, और अकाउंट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो 100 आंसर बेसिकली बिड डी GFR 174। क्वेश्चन नंबर 81, टू रिड्यूस डिले appropriate time frame for each stage of procurement should be prescribed by the ministry or department, ये भी करेक्ट है। To minimize the time needed for decision making and placement of contract, every ministry or department with the approval of the competent authority may delegate whenever necessary appropriate purchasing powers to the lower functionaries, ये भी करेक्ट है। The ministries or department should ensure placement of contract within the original validity of the bids. Extension of bid validity must be discouraged and restored to only in exceptional circumstances. इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो आपका फास्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, जब भी प्रोक्योरमेंट जो अल्टीमेटली जो बीड वैलिडिटी पीरियड है वो एक्चुअली क्लियरली मेंशन हो, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। एक बीड वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, कब बीड ओपनिंग होगा और कब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उसमें डिले नहीं होगा, राइट। तो ये एब्सोल्युटली फास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। टू रिड्यूस डिले यहाँ पर एम्फसाइज आपको देखना है। सेकंड स्टेटमेंट को चलेंगे, टू मिनिमाइज द टाइम नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग, मिनिमाइज द टाइम नीडेड फॉर डिसीजन, जो जब बीड क्लियरली एक साइकिल होना चाहिए, उसमें बेसिकली जो बीड वैलिडिटी पीरियड है उसमें क्लियरली बीड कब ओपनिंग होगा, कब एवेलुएट किया जाएगा, कब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ये जो पीरियड होगा वो मिनिमाइज होना चाहिए। ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द मिनिस्टर डिपार्टमेंट शुड एंश्योर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द, जो उसको बेसिकली जो बीड वैलिडिटी पीरियड है, हम किसको बोलते हैं बीड वैलिडिटी पीरियड, बेसिकली बीड ओपनिंग टू अल्टीमेट टू द कॉन्ट्रैक्ट, फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो इसमें आपको देखना है कि जो बीड वैलिडिटी पीरियड है उसको एक्सटेंशन ज़्यादातर बेसिकली नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड टू एक्सटेंड द बीड वैलिडिटी पीरियड। बेसिकली बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है, बीड ओपनिंग डेट टू अल्टीमेट टू इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू ए कंसर्न बीडर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। Okay, all the above statements are correct one. All the above statements are correct one, right? यहाँ पर थोड़ा दिया है बीड वैलिडिटी पीरियड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम सब्सिक्वेंट टू द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ बीड्स फॉर व्हिच द बीड प्राइस एंड द कंडीशंस ऑफ बीड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज बाय द बीडर, ये भी करेक्ट है। बीड वैलिडिटी थोड़ा देख लीजिए, ये जो है मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम सब्सिक्वेंट टू द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ बीड्स फॉर विच द बीड, मैंने वो दिया है कि जो बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है कि एक बार बीड सबमिट हो गया, बीड सबमिट होने के बाद बेसिकली बीड्स में कोई अल्टरनेट नहीं किया जाएगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द बीड ओपनिंग डेट, ये बीड ओपनिंग डेट एंड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड डेट, बिटवीन द, ये जो बीड ओपनिंग डेट से जो कॉन्ट्रैक्ट वो अवार्ड किया गया उसी जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे बीड वैलिडिटी पीरियड, ये भी करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है, बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स द पीरियड फिक्स्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी टू परमिट एवेलुएशन एंड कंपैरिजन ऑफ टेंडर्स, ये सब परमिट एवेलुएशन, कंपैरिजन ऑफ टेंडर्स, ऑब्टेनिंग ऑल नेसेसरी क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल्स, नोटिफिकेशन अवार्ड, ये सब। तो तीन चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत ईजी है। फर्स्ट वन आपको याद रखना है किसको हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलेंगे, और एक बार मैं क्लैरिफाई करता हूँ किसको हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलेंगे कि आफ्टर सबमिशन ऑफ बीड्स एक सबमिशन डेट होगा, जो अल्टीमेट सबमिशन डेट होगा उसके बाद ओके कोई भी बीडिंग में अल्टरनेट नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो दिया है बीड वैलिडिटी पीरियड हम किसको बोलेंगे ना, बीड ओपनिंग डेट से लेकर, बीड ओपनिंग डेट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट, ओके अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो पीरियड बिटवीन में होगा, बिटवीन द पीरियड ऑफ बीड ओपनिंग डेट एंड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड डेट। और जो है बीड वैलिडिटी पीरियड किसको बोलेंगे ना, जिसमें बीड्स को एवेलुएट किया जाएगा,
बीड्स को असेस किया जाएगा, उनका प्राइस शेड्यूल को कंपेयर किया जाएगा, उनका टेक्निकल कैपेबिलिटी को कंपेयर किया जाएगा। तो ये सब जो होता है और अल्टीमेटली जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसको हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। तो आंसर इज बीट डी। इसको भी अच्छे से देख लीजिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ सकता है। 83 बहुत इजी है, ये सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल CPPP, ओके, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, राइट, आंसर इज बीट सी। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज ए सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम अडॉप्टेड। अच्छा, सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, बेसिकली आप देख लीजिए GFR 166 में, व्हेन रिक्वायर्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पर्टिकुलर फार्म, ये करेक्ट है, पर्टिकुलर फार्म एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहा है। इमरजेंसी केस में एक्चुअली पर्टिकुलर फार्म से गुड को प्रोक्योर करना है, इमरजेंसी केस में एक पर्टिकुलर फार्म है उससे ही हमको गुड को प्रोक्योर करना है इमरजेंसी केस में, ये भी ठीक है। और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए कि जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी चाहिए वो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर दे रहा है, ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑल द अबव आर करेक्ट वन। इसी केस में एक्चुअली सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम को फॉलो किया जाएगा और वहाँ पर एक आप जानते हो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि इसी के वजह से एक्चुअली सिंगल मैन्युफैक्चरर को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, क्योंकि एक सिंगल फार्म है जो गुड को बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। सेकेंड चीज़, ऐसा इमरजेंसी कंडीशन में एक्चुअली पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से गुड को प्रोक्योर किया जाएगा। और थर्ड चीज़ है कि डिपार्टमेंट को जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी चाहिए, वो सिंगल मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है। तो एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर देना पड़ेगा, उसमें ऑथेंटिक रीजन देना पड़ेगा कि ड्यू टू दिस रीजन एक्चुअली द गुड इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम ए सिंगल मैन्युफैक्चरर। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट उसके क्वेश्चन में ट्विस्ट होकर आ सकता है। और ये जो GFR रूल 166 आप देख लीजिए, ठीक है, आंसर इज बीट डी। तो क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। व्हाट इज द ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू सिलेक्ट ए सक्सेसफुल बीड। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन जो ऑनलाइन बोली होता है बेसिकली, ये रूल आप देख लीजिए 167। ओके, व्हाट इज द ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक, ये याद रखना है। ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू सिलेक्ट ए सक्सेसफुल बीड, इट इज इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। आप रूल देख लीजिए, रूल 167 में क्लियरली मेंशन है। और वहाँ पर एक्चुअली थ्रू ऑनलाइन एक्चुअली जो बीडर्स है वो बेसिकली वहाँ पर वो क्या करेंगे ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मीन्स an online real time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful bid, which involves presentation by bidders of successively more favorable bids। तो वहाँ पर उनका प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वो देते हैं बिडर्स, देन अल्टीमेटली कंसर्न बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ओके, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा ना, थ्रू ऑनलाइन एक्चुअली बिडर्स उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे और वहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो ये ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, ये GFR 167 में है, आंसर इज बीट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 86, द अदर नेम ऑफ बीड सिक्योरिटी इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD, आप याद रखिए EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये आंसर बीट बी है। बीड सिक्योरिटी आप देख लीजिए GFR 170 में, पहला वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे बीड सिक्योरिटी, जब बीडिंग डॉक्यूमेंट्स, व्हेन द बीडर्स सबमिट देयर बीडिंग डॉक्यूमेंट्स दे मस्ट सबमिट ऑल्सो बीड सिक्योरिटी। बीड सिक्योरिटी बेसिकली इट इज़ 2 to 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू जो होता है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगा, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है ना, बीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ बीड सिक्योरिटी देना है, तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू का 2 to 5% होना चाहिए। 2 to कितना होना चाहिए, 5%। अच्छा, बीड सिक्योरिटी क्यों जमा किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, बीडर बीड को विथड्रॉ कर सकता है, तो जब बीड को विथड्रॉ करेगा तो उसका जो बीड सिक्योरिटी प्रॉफिट हो जाएगा। और कभी कभी क्या है, जो बीड सबमिशन डेट जा चुका है और वो बीडिंग में कुछ अल्टरनेट करना चाहता है, कुछ मॉडिफाई करना चाहता है, तो उस केस में यदि वो कुछ उसका बीडिंग में मॉडिफाई करेगा कि अल्टरनेट करेगा, तो उस केस में उसका बीड सिक्योरिटी को प्रॉफिट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए बीड सिक्योरिटी दिया जाता है बीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ। ओके, द बीडर कैन नॉट विथड्रॉ द बीड, बीडर बीड को विथड्रॉ नहीं कर सकता, और ऑल्सो द बीडर कैन नॉट मॉडिफाई और अल्टर द बीड आफ्टर
सबमिशन ऑफ द बीड्स। बीड को सबमिट करने के बाद वो बीडिंग में कोई अल्टरनेट कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता और बीड को भी विथड्रॉ नहीं कर सकता। इसके लिए उसको बीड सिक्योरिटी देना पड़ता है और उसमें कोई छेड़खानी करता है तो उसका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट कर दिया जाता है। ये रूल 100 GFR 170 देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है। उसका अल्टरनेट नेम है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। शुड ए बिडर रिक्वेस्ट और इंक्वायर अबाउट द रीजन्स फॉर रिजेक्शन और नॉन इशुएंस ऑफ ए टेंडर टू ए प्रोस्पेक्टिव बिडर, इज इट मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द रीजन्स? यस। सपोज कोई बिडर का बेसिकली बीड्स को रिजेक्ट कर दिया गया, तो वहाँ पर ऑथेंटिक वो चाहता है, सपोज वो रीजन चाहता है क्यों मेरा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों मुझे टेंडर नहीं मिला, तो वो पूछ सकता है। ओके, द पर्टिकुलर बिडर ऑल्सो कैन आस्क ओके टू द प्रोक्यूरिंग एंटिटी कि फॉर व्हाट रीजन इट मीन्स द टेंडर इज नॉट गिवन टू मी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, फॉर व्हाट रीजन माई बिडिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड। तो उस केस में प्रोक्यूरिंग एंटिटी को रीजन देना है, उनको रीजन देना पड़ेगा कि इसी रीजन की वजह से आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, कि आपको फाइनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। व्हिच सिस्टम इज बीइंग फॉलोड फॉर परचेज ऑफ हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी एटसेट्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर टू बीड सिस्टम? टू बीड सिस्टम में बता चुका हूँ, ये जो रूल 163 है। टू बीड सिस्टम में क्या है, जब आपको याद रखना है हाई वैल्यू प्लांट और मशीनरी, इस केस में क्या है, साइमल्टेनियसली दोनों बीड्स को सबमिट किया जाएगा, टेक्निकल बीड्स एंड फाइनेंशियल बीड्स। मगर फास्ट टेक्निकल बीड्स को ओपन किया जाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों बीड्स को सबमिट किया जाएगा, मगर टेक्निकल बीड्स को टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी एवेल्युएट करेगा। जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनका ही फाइनेंशियल बीड्स को एवेल्युएट किया जाएगा, उनका ही प्राइस शेड्यूल को एवेल्युएट किया जाएगा, और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसको फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो ये टू बीड सिस्टम जो 163 में है, ये टू स्टेज बिडिंग कभी कभी हो जाता है, नहीं टू स्टेज बिडिंग नहीं, यहाँ पर टू बीड सिस्टम हाई वैल्यू प्लांट और मशीनरी केस में, राइट। आंसर इज बीट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज द कॉस्ट चार्ज टू डाउनलोड टेंडर डॉक्यूमेंट्स? जैसे एडवर्टाइज जो होता है, जब टेंडर से इन्वाइट किया जाता है तो वहाँ पर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पर अपलोड किया जाता है? पहले जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल में अपलोड किया जाता है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल उसमें किया जाता है, और खुद का ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। तो जब बिडर्स वो डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, नो कॉस्ट। जो डॉक्यूमेंट्स वो डाउनलोड करेंगे ओके, वो उसमें कोई कॉस्ट उनको देना नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 ई प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है। आप ई प्रोक्योरमेंट आप देख लीजिए, GFR 160 देख लीजिए, ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर है। ई प्रोक्योरमेंट अकॉर्डिंग टू GFR मीन्स यहाँ पर जो है बिट बी आंसर है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। आंसर इज बिट बी, use of information and communication technology in the procurement process. Okay, it is the meaning of e procurement. ये रूल GFR रूल 160, ये इसको भी याद रखिए। In which rule actually the meaning of e procurement is given? It is the rule GFR 160. Okay, वहाँ पर communication technology का यूज किया जाएगा और procurement process में, right? चलो क्वेश्चन नंबर 91। आइडेंटिफाई रीजन फॉर विच ए बिडर शैल नॉट बी डिवेयर्ड। किस केस में एक्चुअली बिडर को डिवेयर नहीं किया जाएगा? व्हेन ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, व्हेन द बिडर मेक्स द हाईएस्ट कोर्ट, व्हेन ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, व्हेन द बिडर हैज ब्रीच्ड द कोड ऑफ इंटीग्रिटी। तो इसी केस में आंसर बिट बी है। इसी केस में एक्चुअली आप याद रखिए ये है व्हेन द बिडर मेक्स द, इसी केस में एक्चुअली बिडर को डिवेयर नहीं किया जाएगा। और जो तीन कंडीशंस में बिडर को डिवेयर किया जाएगा, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि अंडर IPC व्हेन ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ड्यू टू दिस देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, अगेंस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, ओके, ड्यू टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ये सब है, कि ब्रीच द कोड ऑफ इंटीग्रिटी। ये जो केस है, ये सभी केस में क्या होगा, ACD, ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो ACD, ये तीनों स्टेटमेंट में उसको डिवेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। मगर जब वो हाईएस्ट कोर्ट, कभी कभी क्या है जो प्राइस शेड्यूल लेता है बहुत हाई हो जाता है, उस केस में उसको डिवेयर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट बी है।
राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन ए लिमिटेड टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली वन इफेक्टिव ऑफर इट शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट। आंसर इज बिट सी, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 93, इन टू, ये बहुत ईजी है, इन टू बीड सिस्टम व्हाट आर द टू बीड्स, एक फाइनेंशियल बीड है, एक टेक्निकल बीड है। फर्स्ट टेक्निकल बीड्स को ओपन किया जाता है, ओके, टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी उसको एवेल्युएट करेगा, जिनको मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर मिलेगा उनका फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाएगा। अदरवाइज टू स्टेज बीडिंग में फर्स्ट ओनली टेक्निकल बीड को इन्वाइट किया जाएगा, जो टू स्टेज बीडिंग है, फर्स्ट टेक्निकल बीड को इन्वाइट किया जाएगा, एवेल्युएट किया जाएगा, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा फिर उनको, वही बीडर को बोला जाएगा कि आप फाइनेंशियल बीड आप सबमिट करो। मगर टू बीड सिस्टम में दोनों बीड साइमल्टेनियसली सबमिट होगा, और पहले टेक्निकल बीड ओपन होगा, फिर उसके बाद जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनका ही फाइनेंशियल बीड्स को ओपन करके उनका प्राइस शेड्यूल को कंपेयर किया जाएगा। तो दोनों बीड्स है, टेक्निकल बीड एंड फाइनेंशियल बीड। तो आंसर IIIV जहाँ पर है वो करेक्ट है, आंसर इज बीड बी। चलो 94, व्हेन इज रिजेक्शन ऑफ ऑल बीड्स जस्टिफाइड, व्हेन ऑल बीड्स मीट द क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन ऑफ बीड्स। इस केस में तो बीड्स को रिजेक्शन नहीं किया जाएगा। व्हेन द टेक्निकल बीड्स मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर से, ये इसमें तो एक्चुअली नहीं किया जाएगा, बीड्स को रिजेक्शन नहीं किया जाएगा। व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, इसी केस में जब इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, इसी केस में ओके ऑल बीड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। व्हेन बीड्स और प्रपोजल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिवीजन, इस केस में भी ओके बीड्स को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बीड्स को कब रिजेक्ट किया जाएगा ना, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, अदर केस में नहीं है, क्योंकि बीड्स को कब मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर नहीं है, जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है, इस केस में, और जो प्राइस शेड्यूल दिया है, जो प्राइस कोटेशन दिया है बहुत हाई है, इस केस में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, ओके, व्हेन इज रिजेक्शन ऑफ ऑल द बिड्स जस्टिफाइड, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन लैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बिडिंग प्रोसीजर्स, कॉन्ट्रैक्ट should ordinarily be awarded to the lowest evaluated bidder who is qualified to perform satisfactorily, negotiation with bidders can be done to achieve the lowest bid even after opening the bid, ये नहीं है। any new condition can be brought in for evaluation of bids, नहीं, ये भी नहीं है। bidders can modify or alter their bids after expiry of the deadline for issuance, ये भी नहीं है। तो आंसर यहाँ पर बिट ए है, वही दिया है, which of the following sentences is correct in terms of bidding procedures, contract should be awarded to the lowest evaluated bidder who is qualified to perform, यही है, ये करेक्ट है। और दो तीनों स्टेटमेंट में क्या है, नहीं है, और तीनों स्टेटमेंट ओके करेक्ट नहीं है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 96, विच वन इज करेक्ट वन, 161 एडवर्टाइज टेंडर करेक्ट है, लिमिटेड 162 लिमिटेड टेंडर है, लेट बिड्स 165 है, ओके, विच वन इज इनकरेक्ट वन, यही इनकरेक्ट वन, 165 लेट बिड्स के ऊपर है। टू स्टेज बिडिंग, ये भी करेक्ट है, टू स्टेज बिडिंग 164, टू बीड सिस्टम 163 और टू स्टेज बिडिंग 100। तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट वन है लेट बिड्स, जो GFR 163, वो एक्चुअली 165 होना चाहिए, अब देख लीजिए। चलो 97 को देखेंगे, विच वन इज इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट वन, तो यहाँ पर 163 टू बीड सिस्टम करेक्ट है, 164 टू स्टेज बिडिंग करेक्ट है, लेट बिड्स 165 करेक्ट है, 166 इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, ये गलत है, 166 जो है सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, 167 में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, यहाँ पर 166, तो यही है इनकरेक्ट, आंसर इज बी डी। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए, व्हेन विच GFR कंटेंट्स ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, जो बिडिंग क्या क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक्चुअली GFR 168 में दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सपोज इसमें दिया है इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस एंड अलाइड टेक्निकल डिटेल्स, प्राइस शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑन द अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये सब आ जाता है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। इंस्ट्रक्शंस जो बिडर्स को दिया जाता है वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आता है। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या कंडीशंस, किस कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, क्या क्या शेड्यूल रहेगा प्रोक्योरमेंट के लिए, स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल डिटेल्स, प्राइस शेड्यूल, ओके, और जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है ये सब रहता है। तो बेसिकली ये GFR 168 में मेंशन है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 99,
which GFR financial rule related no official of a procuring entity or bidder shall act in contravention of the code of integrity। अभी मैं बताया था कोड ऑफ इंटीग्रिटी के ऊपर GFR 175 में है कोड ऑफ इंटीग्रिटी। बेसिकली किसको वहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंटली इन ट्रांसपेरेंट मैनर द गुड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ ब्राइब, देयर इज नो रिगिंग, ओके, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ द बिडर, ओके, देयर इज एनी बिडर कैनॉट इन्फ्लुएंस द एनी ऑफिशियल फॉर टेकिंग बीड। ये सब आ जाता है कोड ऑफ इंटीग्रिटी में। और इसको ब्रीच किया जाता है तो प्रोक्योरिंग एंटिटी एक बीडर को 2 ईयर्स के लिए डिवेयर कर सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100। इट इज मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज टू रिसीव ऑल बिड्स, it is mandatory for ministries, the departments to receive all bids through e-procurement portal in respect of all procurements except। अच्छा, मैं बताया था ई प्रोक्योरमेंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है, जब जो इशू नेशनल सिक्योरिटी और ये है वो यार नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन होता है, उसको एक्चुअली एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा। ओके, ये करेक्ट होगा। टेंडर्स फ्लोटेड बाय इंडियन मिशंस अब्रोड, ओके, तो दोनों केस दिया है। इट इज मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स टू रिसीव ऑल बिड्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट्स एक्सेप्ट वेयर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस डिमांड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, टेंडर्स फ्लोटेड बाय इंडियन मिशंस अब्रोड। तो ये दोनों केस में बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होगा। थोड़ा देख लेते हैं। 100 आंसर इज बीट सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपको याद रखना है यदि कोई ऐसा टेंडर इनवाइट होगा जो रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस और वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा। और एक है जब टेंडर्स फ्लोटेड होता है इंडियन मिशंस अब्रोड, क्योंकि वहाँ पर जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो एम्बासीज को दे दिया जाता है, इंडियन एम्बासीज और फॉरेन एम्बासीज। जैसे अभी हम चाहते हैं कि जो बिड इनवाइट करेंगे यूएसए से, तो हमारा जो एम्बासी है उसको हम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, जो अमेरिकन एम्बासी इंडिया में उनको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। वहाँ पर वो एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, वहाँ पर इंडियन एम्बासीज को दे दिया जाएगा और वो वहाँ पर दोनों एम्बासीज वो बात करके फाइनल करेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, राइट। उसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हाउएवर शैल बी इन्वाइटेड फॉर टेंडर्स अप टू डैश और सच लिमिट आज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी होता है जीटी, वो मोर देन 200 करोड़ होना चाहिए। मोर देन कितना होना चाहिए? मोर देन 200 करोड़ होना चाहिए। ओके, और उससे कभी कभी क्या होता है कि 2 करोड़ से कम होगा, मगर वहाँ पर क्या होगा कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का परमिशन लेना है। ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, जो बेसिकली बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में वो कमोडिटी अवेलेबल नहीं है, तब किया जा सकता है। मगर बेसिकली जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी होता है उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू कितना होना चाहिए? मोर देन 200 करोड़। वही दिया है कि नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हाउएवर शैल बी इन्वाइटेड फॉर टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़। यहाँ पर आंसर बिट सी है। और सच लिमिट आज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी आपको याद रखना है, जो भी जीटी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी होता है, जब एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन 200 करोड़ होगा, राइट। तो ये आज था बेसिकली इतना क्वेश्चन। प्लीज़ माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। ऑल्सो इन माय इट मीन्स description box also telegram channel link is there. Please click on it and join my telegram channel also. You can get all the videos. So in my next video I will upload procurement of services MCQ multiple choice question related to the procurement of services. तो सबको नमस्कार and प्रणाम. Thank you all.